So let's start with today's webinar. So hello everyone and good evening. I hope you all doing all well and staying at home. So this is Sanjana Hemadi from Financial Yari. So let me give you some insight about our company Financial Yari. Financial Yari was founded by Mr. Sandeep Sayani on April 2020. It's a digital initiative to spread financial awareness of investing money. We basically deal in financial learning, market research, investment portfolio advice, equity, and startup research. So, our core business is financial awareness and learning. We also deal in third party banking and financial products. So now let me introduce you to our guest speaker for today, which is Mrs. Vaishali Gupta. So last year, ma'am started her own business called Desire Achiever Investment Services for financial planning. Ma'am believes that each and everyone require the proper guidance of how to save or invest money. And her company's motive is to give proper guidance of investment during such a situation. We are really happy and glad to welcome you, ma'am, today. So, over to you, and you can continue further. So, good evening, everyone. I hope I'm visible and audible to you all. Yes, ma'am, loud and clear. Okay. So, thank you so much, first of all, Sanjana, for a great introduction. And I would like to thank you to Financial Yari platform for giving me this great opportunity to explore with an individual here. So, I'm really excited to interact with you all, and this is really very an interactive session. So, are you excited for that? Just like comment section. Just type a comment section. Yes, I'm excited. So I get to know you are really very much excited to learn about the financial things. That's great, Sunil. Like you are very much excited, and I hope you will. It will not only help you for learning, but it will help you in your real life also. Like what exactly you have to do with your life, with your investings. It will help you in that. Okay, so first let me introduce myself. I'm Vishali Gupta. I'm the founder of Desire Achiever Investment Services. Since past 2 years, I have a more than 38,000 plus LinkedIn followers, and I have a more than 5 years and above experience in financial field. Basically, in college time, I also don't know what I have to do and what is my niche. But God is always put you where you always want to be. So here I am, and I'm the founder of Desire Achiever Investment Services, and I'm the financial advisor. So just begin with the webinar. I will just share you some slides. Okay. So this is my company logo, Desire Achiever Investment Services, which I'm presenting. And here I'm giving you the financial awareness where you can put your money in the correct manner and achieve your all the goals. Okay. So once again, I would like to ask you one thing. So today you know that we are come here to understand about how you can hedge the investment returns against inflation rate. को आपको बीट करना है तो आपको ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करने होंगे लाइक जहां पे आपको 6% से ज्यादा रिटर्न्स मिले सो इसी वजह से हमें आज कंसेप्ट सीखना है ओके सो आज आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी लाइक अगर आप कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करते हैं जहां पे आपका फाइनेंशियल गोल्स ऑन टाइम अगर है ना पूरा होता है तो वो कौन से है ना प्रोडक्ट्स होंगे आप मुझे नाम लिख के भेज सकते हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स okay. So I will
स्प्रेड यू द डिटेल्स अबाउट के हाँ आज हम कौन से चीज़ों पे लर्न कर सकते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमें एकदम प्रोडक्टिव रिटर्न्स, एक अच्छा रिटर्न्स निकाल के देती है, जो हमारे हर एक गोल्स को पूरा करती है। ठीक है, सो लेट्स अभी अगर मैं यहाँ पे आऊँ, सो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि हमारे पास अगर मंथली बेसिस में अगर हमें चूज करना हो कि कौन से ऐसे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहाँ पे हम बेस्ट रिटर्न्स निकाल सकते हैं, ऐसे कौन से बेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं जहाँ पे हम मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छे रिटर्न्स हम लोग जनरेट कर सकते हैं उसमें से। Okay, so let's come to this page. Like SIP is the best instruments. It is the part of mutual fund. म्यूचुअल फंड में ये एक ऐसा पार्ट है जिसके हिसाब से हम लोग इन्वेस्टमेंट मंथली बेसिस पे कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड एन सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिससे आप एक छोटे अमाउंट को स्टार्ट करके एक बड़ा कॉर्पस आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको आगे के स्लाइड्स पे बताऊंगी। और सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान भी इसका है ना, म्यूचुअल फंड का एक पार्ट है जहाँ पे हम मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमें ऑल सारी चीज़ें हमें कहाँ पे अवेलेबल मिलेगी, दैट इज़ एन ई वेल्थ अकाउंट। आपने डीमेट अकाउंट तो सुना ही होगा, जैसे डीमेट अकाउंट होता है और हम डीमेट अकाउंट के थ्रू हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं और ये हर जगह पे आपको अवेलेबल मिलता है। ठीक है, सो अभी इसके आगे अगर मैं जाना चाहूँगी उसके पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगी कि अब तक में हमने जो भी मार्केट में ट्रेंड्स देखा है, ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट मतलब तरीके देखे, तो वो कौन से बेस्ट तरीके हैं जिसमें लोग सोचते हैं कि हाँ ये एक बेस्ट तरीका है, इसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पैसे सेफ रह सकते हैं और हम अच्छा रिटर्न यहाँ से गेन कर सकते हैं। तो वो कौन से इंस्ट्रूमेंट होंगे, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के भेजेंगे। So today we are going to talk about equities and mutual funds. आज उसके पावर के बारे में बात करेंगे क्योंकि अब तक में हमने एफडीज हो गया या फिर हम लोग रियल एस्टेट बोल सकते हैं या गोल्ड बोल सकते हैं, ये सारी चीज़ों के हिसाब से हमने देखा है कि हम जब भी इन्वेस्टमेंट की बारी आती है तो हम यही सारे इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करते हैं। बट आज हम बात करेंगे इक्विटीज़ एंड म्यूचुअल फंड्स पे कि हाँ वो क्या कर सकते हैं, उससे क्या हमें बेनिफिट होता है, तो वो हम आज लर्न करेंगे। सो अगर कोई मुझे बता सकता है कि जब हम अगर 1980s की बात करें तो 1980s में हमारे एफडीज का या फिर जो भी हमारे असेट्स होते थे वो क्या हमें रिटर्न्स या किस प्राइस पे हमें मिलते थे या बाई मतलब किस प्राइस पे हम बाई कर सकते थे। ओके, सो अगर मैं 1980s की बात करूं, देर आर 4 असेट क्लास। हम एफडीज पकड़ सकते हैं, गोल्ड हो सकता है, प्रॉपर्टी होता है एंड इक्विटीज होता है। अब 1980s में एफडीज हमें 16% रिटर्न्स देते कंसिडर कर सकते हैं। और वही जगह पे अगर मैं इक्विटी बोलूं तो यू कैन सी नाउ लाइक वो 50,000 एंड अबाउ चला गया है। सो इट्स कॉल्ड 500 टाइम्स रिटर्न्स उसने गेन किया है। सो हमें अगर वेल्थ क्रिएट करना हो, सो म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट असेट कि जहाँ पे हम अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। आज मैं आपको एक एक्साइटिंग एक एग्जांपल देना चाहूंगी जिससे आपको बहुत ही अच्छा आइडिया आएगा कि हाँ अगर जो हमारे एंसेस्टर्स ने जो हमारे पेरेंट्स थे या ग्रैंड पेरेंट्स थे, ठीक है, उन्होंने जो चीज़ें नहीं की उनसे हम आज लर्न करेंगे और वो सारी चीज़ें हम वो गलतियां नहीं करेंगे और उसके हिसाब से हम नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो आपने रॉयल एनफील्ड का तो नाम सुना ही होगा, क्या आपने रॉयल एनफील्ड का नाम सुना है? जस्ट ड्रॉप कमेंट सेक्शन में आप लिख के भेजिए यस और नो।
ठीक है। सो 2001 में जो रॉयल एनफील्ड थी उसकी बाइक की प्राइस थी 55,000। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे 2001 में 55,000 इज द प्राइस ऑफ द बाइक। और वही जगह पे जो कोई शेयर मार्केट में आयशर मोटर में पैसे डालते थे तो उनका प्राइस था ₹1.75। सो दो टाइप के पीपल थे जिन्होंने बाइक में प्राइस मतलब बाइक खरीद के वो 55,000 की एक रखी होगी, और दूसरे ऐसे पर्सन थे जिन्होंने वही 55,000 शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाया होगा। सो उनके पास ऑलमोस्ट 31,430 शेयर्स उन्होंने बाय की होगी उस टाइम पे जिन्होंने इस आयशर मोटर में पैसे लगाए होंगे। सो आज की तारीख में अगर मैं फैब 2021 तक की भी अगर मैं बात करूं तो 2,963 वाज द शेयर प्राइस ऑफ वन शेयर। मतलब एक शेयर का प्राइस जो 1.75 रुपीज था वही आज 2,963 रुपीज है। सो जिन्होंने 31,430 प्राइस खरीद के अगर आज के प्राइस से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.31 करोड़ का उन्होंने AUM बना लिया होगा, उनके पास उतना वेल्थ क्रिएट हो गया होगा। वही जगह पे जिन्होंने बाइक खरीदी होगी तो उसका क्या हुआ होगा, लाइक वो डेप्रिशिएट हो गया होगा। जो हमने प्राइस पे खरीदा था, हर साल बाइक का प्राइस, कार का प्राइस डेप्रिशिएट होता है। वही जगह पे अगर हमने एक ऐसे जगह पे पैसे लगाए होते थे तो जहाँ पे हम वेल्थ क्रिएट कर सकते थे वो हमने क्रिएट की होगी। ठीक है। सो ये सारी चीजें तो ठीक है, ये मैंने बाइक का एग्जाम्पल दिया है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी जो डेली कंजम्पशन मतलब लाइक दिन भर में जो हम यूज करते हैं वो आप मुझे कुछ नेम ऑफ द लिस्ट भेज सकते हैं जिसपे हम लाइक बोलते हैं ना कि हाँ ऐसे ऐसे कौन सी चीजें हैं जो शेयर मार्केट में है ना लिस्टेड है, उनका नाम मुझे भेजिए कमेंट में। अगर मैं डेली कंजम्पशन की बात करूँ तो हम लोग क्या क्या चीज़ें है ना कंसिडर कर सकते हैं जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है। जैसे कि ड्रीम्स, हम जो कार खरीदने की ड्रीम्स देखते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, मारुति हो गया। फैन जो हम यूज़ करते हैं हेवल्स का हो गया, बजाज का हो गया। पेंट जो हम घर में पेंट करते हैं, एशियन पेंट हो गया, बर्जर हो गया। जो शूज़ हम पहनते हैं, बाटा, रिलैक्सो। ये एक डेली वेयर की जो हम लोग दिन भर में जो यूज़ करते हैं, ये वो चीज़ है जो हर एक चीज़ मतलब हमारे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। ठीक है। आज मैं आपको वो चीज़ों का डिफरेंस बताऊंगी कि अगर हमने उस टाइम पे लाइक जो हमारे पेरेंट्स थे, अगर उन्होंने उस टाइम पे अगर इन सारी चीज़ों के ऊपर मतलब इन्वेस्टमेंट किया होता, शेयर मार्केट में डाला होता, तो उनके प्राइस कितनी ग्रो हो चुकी होती थी। जैसे कि कोलगेट 2001 में कोलगेट 76 रुपीज़ में मिलता था, वही 2021 में 1559 रुपीज़ हो गया। लाइक 21 टाइम्स इसने ग्रो किया है। जैसे टाटा कॉफ़ी हो गया या फिर आप हेवल्स देख सकते हैं, यहाँ सब में सबसे ज़्यादा ग्रोइंग अगर मैं देखूँ तो 2 रुपीज़ का हेवल्स का प्राइस था शेयर मार्केट में, लेकिन वही आज की तारीख में 1050 रुपीज़ है। दैट इज़ 525 टाइम्स इसने ग्रो किया है। आपको आप यहाँ पे जो भी चार्ट देख रहे हैं, हर एक चीज़ जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो डेली बेसिस की वो सारी चीज़ें इसमें दी गई है। और आज भी मैं आपको बोल सकती हूँ कि आज भी कोई लेट नहीं हुआ है। हम अपने अपने जो भी हमारे पेरेंट्स हैं उनके मिस्टेक से हम लर्न कर सकते हैं, और आज भी जिसके प्राइसेस कम हैं हम उसमें इन्वेस्टमेंट करके हम अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन मैं और एक चीज़ आपके साथ में आपके साथ में डिस्कस करना चाहूँगी कि ठीक है, इन्वेस्टमेंट करना है शेयर मार्केट में करना है वो तो ठीक ही है, बट हर एक का ग्रोइंग लेवल अलग अलग परसेंट पे है। आप अगर देख सकते हैं जैसे टाटा पावर 10% से ही ग्रो किया है, लाइक 10 टाइम्स ही उसने ग्रो किया है। वही जगह पे अगर हम मैरिको लेंगे तो 134 टाइम्स उसने ग्रो किया है। तो हर एक बोलते हैं ना, हम अगर डाइवर्सिफाई करना चाहे हमारे पोर्टफोलियो को तो कुछ पार्ट हमारा स्टॉक मार्केट में ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, भले वो हमारे छोटे अमाउंट से क्यों ना हो। स्टार्ट विद दैट अमाउंट और धीरे धीरे उसे आप ग्रो कीजिए, तो उससे आपका भी अगर आप यहाँ से आप है ना 10 साल के बाद में या 20 ईयर्स के बाद में आप अपना खुद का पोर्टफोलियो देखने जाएंगे ना तो वो भी आपको ऐसे ही ग्रो करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। सो अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि हमें SIPs के थ्रू क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं?
इन लाइक कमेंट सेक्शन में आप मुझे भेज सकते हैं कि हमें SIPs के थ्रू ही क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ओके, उसका बहुत ही बड़ा रीजन है, जो मतलब हम बोलते हैं ना कि हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन SIPs ऐसा क्यों, कि हम लोग को उसके अंदर ऐसी क्या क्या चीज़ें बेनिफिट्स मिलते हैं जिसकी वजह से हम उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, तो वो मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगी। ओके, सो लेट्स कम टू दिस पेज। 25 इयर्स का मैं आपको निपन इंडिया ग्रोथ फंड का म्यूचुअल फंड के बारे में बताना चाहूंगी, जो जो हमारे जिन्होंने 1995 में 10,000 की SIP स्टार्ट की थी, उन्होंने हर महीने डिसिप्लिन मैनर में 10,000 रुपीज SIP इन्वेस्टमेंट करते गए। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 2021 में, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे नीचे के इस पे फर्स्ट 2021 की मैं बात कर रही हूँ, उनका प्रिंसिपल अमाउंट जो 10,000 उन्होंने हर महीने डाला है, वो अमाउंट 30,000 तक उनका प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टमेंट हुआ है। वही जगह पे उनका NAV जब उन्होंने स्टार्ट किया था 1995 में 10 रुपए की NAV थी, और आज उनकी NAV है 1,566.04, मतलब 1,500 रुपए तक वो NAV गया है। और इसी वजह से हमारा जो वैल्यूएशन है, ये जो पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन आप देख सकते हैं 9,94,00,000 दिख रहा है आपको। सो इट जस्ट लाइक के जब हम 30 लाख ही हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ है, बट हमारे पोर्टफोलियो का वैल्यू इट्स बिकम 9,94,00,000। सो वो कैसे हुआ? विद द हेल्प ऑफ CAGR, दैट इज कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रिटर्न्स 22.41%। इतने सालों में जो रिटर्न्स आया है, 25 इयर्स में जितना भी रिटर्न्स आया है, उसका ओवरऑल रिटर्न्स अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज 22.41% इसमें रिटर्न्स इसने दिया है, जिस वजह से ये एक बड़ा ह्यूज अमाउंट का इनका पोर्टफोलियो बना है। अगर हम आज की तारीख में भी अगर मैं बोलूँ ना कि आप 1,000 रुपीज से या 5,000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, एंड इफ यू वांट टू स्टार्ट विद 5,000 रुपीज और 1,000 रुपीज, आप वो भी आप 10 साल बाद या 15 साल बाद या 20 साल बाद आप देखेंगे ना, वो भी आपको ऐसे ही ग्रो करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इसका जो ट्रेंड है दैट इज नॉट चेंज। इनफैक्ट म्यूचुअल फंड का पहले तो इतना नाम भी नहीं था, लेकिन आज काफी लोग इसके बारे में जानने लगे हैं और काफी लोग इसमें है ना इन्वेस्टमेंट करने लग गए हैं। तो ये एक बेस्ट तरीका है जहाँ पे हमारे पास रिस्क भी कम होता है और रिटर्न्स भी ज्यादा मिलता है। इनफैक्ट आपको अगर ये फुल चार्ट चाहिए होगा तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आई वांट लिख के भेज दीजिए, देन आई विल लास्ट में आपको मैं इसके बारे में जो चार्ट रहेगा मैं आपको सेंड करूंगी। ठीक है, आई वांट लिख के मुझे आप कमेंट सेक्शन में भेजिए, तो मैं आपको 1995 से हर महीने कितना पैसा ग्रो किया है, कैसे इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो फुल इलस्ट्रेशन में आपको सेंड करूंगी। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट 40 इयर्स बैक। ये 25 इयर्स बैक की बात है, मैं 1980s की बात करती हूँ, जो SIPs में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होगा। अगर किसी ने 11,000 का भी SIPs किया है और उन्हें ऑन एन एवरेज ओवरऑल रिटर्न्स भी 17.5% रिटर्न्स भी आया होता, तो उनका प्रिंसिपल अमाउंट 52 लाख अराउंड उनका इन्वेस्टमेंट हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट, बट उनके पोर्टफोलियो का वैल्यू इज 52 करोड़ हो गया होता था, 100 टाइम्स। सो इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ कि ये जो हमारे SIPs होते हैं, जब हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, जिसे जो भी हमारे बड़े AMCs में इन्वेस्टमेंट जाते हैं, इनके होल्डिंग्स होते हैं, वो एक पर्टिकुलर चीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, वो बहुत सारे जगह पे छोटा छोटा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा रिस्क कम हो जाता है और रिटर्न्स हमारे बहुत ही बेटर होते हैं। क्योंकि आप कंसिस्टेंटली एक स्मॉल अमाउंट को भी आप डालते रहेंगे ना इन्वेस्टमेंट पे, या डिसिप्लिनली इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, तो भी आपको ये बहुत अमाउंट मतलब बड़ा अक्यूमुलेट करके अमाउंट दे सकता है। ओके, सो लेट्स कम टू अंडरस्टैंड अबाउट कि अगर आपको यहाँ से अगर 1 CR आपको अक्यूमुलेट करना है या 2 CR अक्यूमुलेट करना है, तो आपको आज की तारीख में कितने की SIPs करनी होगी। सो 20 इयर्स के बाद में आपका अगर रिक्वायरमेंट है
कि हाँ आपको 1 करोड़ अक्यूमुलेट करना है या 2 करोड़ आपको अक्यूमुलेट करना है या 5 या 10 करोड़, तो उसके हिसाब से ये चार्ट है जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन दिया गया है कि अगर आप 15%, मैं आपको यहाँ पे 8%, 12%, 15% तीनों के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगी। लाइक 8% आप पकड़ने चाहे तो आप आरडीज या पीपीएफ ये सारी चीजों में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एटलीस्ट 1 करोड़ आपको अक्यूमुलेट करने के लिए 17,462 का मंथली आपको इन्वेस्टमेंट करते रहना होगा। वही जगह पे अगर आप 12% अक्यूमुलेट बोलते हैं ना, 12% के हिसाब से अगर आप जो भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मंथली आपको 10,871 रुपीज आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। वही आप म्यूचुअल फंड में, अगर मैं आपको बोलूँ ना, म्यूचुअल फंड अगर आप 20 ईयर्स तक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इट विल गिव यू मोर देन 15%, श्योरली 15% तो मिनिमम हम कंसिडर करते हैं 20 ईयर्स के पोर्टफोलियो में। अगर मैं 15% भी पकड़ती हूँ तो भी आपको 7,535 का हर महीने SIPs करना होगा, तब जाके आप इजीली 1 करोड़ अक्यूमुलेट कर सकते हैं। वैसे ही आगे जैसे मतलब जैसे 2 करोड़ आपको अक्यूमुलेट करना है तो कितना करना होगा, 5 करोड़ करना है, 10 करोड़ करना है तो आपको कितना करना होगा, ये आपको एक आइडिया दिया गया है। तो अभी जो आप जिस जनरेशन में है लाइक 20 to 25 के बीच में, ठीक है, ये टाइम पे आपके पास 10 साल का एक गोल आप सेट कर सकते हैं, जिसमें आप एक गोल ऐसा रख सकते हैं जहाँ पे आप घर खरीदने का गोल रख सकते हैं या फिर आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे। क्योंकि जब हम कॉलेज से जब हम बाहर निकलते हैं हम काफ़ी बार कंफ्यूज रहते हैं कि हमें एक्चुअल में करना क्या है। कभी कभार हम स्ट्रीम सिलेक्ट करने में कंफ्यूज हो जाते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन हम एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं, जितना भी हमारे पास सरप्लस बचता है लाइक इनकम माइनस एक्सपेंस होता है, उसके बाद में अगर आपके हाथ में ऐसा लगता है कि ये मैं सेव कर सकता हूँ, चाहे वो 2,000 हो, 5,000 हो, 10,000 हो, स्टार्ट विद दैट अमाउंट। आप उस अमाउंट से आप स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आज आपने गोल सिलेक्ट करके नहीं रखा है, लेकिन फ्यूचर में जब आप 5 साल बाद भी आप इस पैसे को निकालने जाएंगे ना तो आपके पास एक अच्छा लमसम अक्यूमुलेट हो जाएगा, जिसे आप जहाँ पे यूज करना चाहें, भले वो आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो आप वहां पे डाल के आप अपना फ्यूचर गोल पूरा कर सकते हैं। सो ये एक तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का और सही डायरेक्शन में इन्वेस्टमेंट करने का। लेट्स कम टू SWP। SWP भी मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। अब SWP होता क्या है आप मुझे बता सकते हैं, लाइक कमेंट सेक्शन में होता क्या है, थोड़ा बहुत किसी को आइडिया है, कोई मुझे बता सकता है? ओके, सो इट्स अ सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। जब हमारे पास एक लमसम आ जाता है, ठीक है, तो हमें ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म पे, ऐसे कौन से जगह पे हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहाँ पे हमें मंथली इनकम आते रहे, प्रॉपर मंथली इनकम। वो जगह पे मैं आपको आज एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहूँगी, ठीक है। इट्स अ म्यूचुअल फंड ओनली। म्यूचुअल फंड में हमारा SWP करके एक मतलब एक हम लोग इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर मैं मेरे प्लेटफॉर्म की बात करूं तो मेरे प्लेटफॉर्म पे हम इसे बाइफरकेट डाइवर्सिफाई करते हैं। अब जैसे असेट एलोकेशंस होता है तो हम कुछ अभी जैसे आप देख सकते हैं कि कैनरा हो गया, DSP हो गया, कोटक इक्विटी हो गया या SBI हो गया, आदित्य बिरला हो गया, तो ये सारे ही म्यूचुअल फंड है। बट हमने इसको क्या किया है, एक परसेंटेज वाइज में को है ना बाइफरकेट करके हमने एक लमसम अमाउंट को इसमें पुट ऑन किया है कि हाँ 22.50% ही इस कैनरा के इक्विटी मतलब म्यूचुअल फंड में हमारा जाना चाहिए या 22.50% DSP में ही जाना चाहिए। तो इससे क्या होता है, हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है। इक्विटीज में मतलब म्यूचुअल फंड में आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होता है और ग्रो करने में वो आपको और भी हेल्प करता है, क्योंकि हमारा पूरा पैसा इक्विटीज में ही नहीं लगता है, वो हमारा पैसा डेट में भी लगता है, जिससे रिस्क और भी कम हो जाता है और रिटर्न्स हम अच्छा गेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर आपके पास 30 lakhs है लमसम, ठीक है, और आप म्यूचुअल फंड में लाइक जैसे हमने बाइफोकेट किया है, आप देख सकते हैं कैनरा में हमने 22.50 के हिसाब से 9 lakhs 9 lakhs 9 lakhs और आदित्य बिरला में 3 lakhs इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। सो अभी उनका टोटल इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, 30 lakhs का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, 30 लाख इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। उन्होंने बोला है मुझे हर महीने 15,000 आना चाहिए।
अब ये 15 साल का परफॉर्मेंस पोर्टफोलियो है, ठीक है। 15 साल तक जो क्लाइंट बोलते हैं कि मुझे 15,000 हर मंथ में आना चाहिए, वो उन्हें 15,000 हर महीने आ ही रहा है। प्लस म्यूचुअल फंड में डालने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी आपका ग्रो होता है। लाइक 30 lakhs बिकम अ 1 crore 26 lakhs। आपने जो विड्रॉल करना था, लाइक 27 lakhs तो आपने विड्रॉल कर लिया 15 साल में, बट प्लस उसके साथ में आपने अपना प्रिंसिपल भी बढ़ाया है, लाइक 1 crore 26 lakhs 88,000। ये कैसे हुआ? हम हमेशा म्यूचुअल फंड में, लाइक अगर आपको मैं ये पूछूं कि आपको अगर हर महीने इनकम्स चाहिए, तो आप और कौन से इंस्ट्रूमेंट में पैसे डालने जाएंगे जहां पे आपको ऐसा लगता है यहाँ से मेरा पैसा थोड़ा ग्रो भी करेगा और आई विल गेट अ गुड इनकम ऑन अ मंथली बेसिस? ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट होंगे? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। ठीक है, सो मैं आपको और एक एग्जांपल दूंगी, लाइक एफडीज। एफडीज में हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, बोलते हैं कि हाँ, जो रिटायर्ड पर्सन हो जाते हैं या उसके पहले जो लोग जिनको मंथली इनकम चाहिए होता है अपने घर को सर्वाइव करने के लिए, तो वो अगर वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और रिटर्न्स लाइक 5.5 के हिसाब से वो पैसे विड्रॉल करते हैं, 15,000 उन्होंने निकाला, तो हार्डली उनके पास में प्रिंसिपल अमाउंट कितना बचता 15 साल के बाद में? कुछ एवरेज ऐसा अप्रोक्सीमेट आप बता सकते हैं कि कितना बचता? जैसे इसमें प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 1 crore 26 lakhs 88,000 बन गया। वैसे अगर उधर विड्रॉल होता, एफडीज में हमारा विड्रॉल होता, तो हमारा कितना अमाउंट बनता ऑन एन अप्रॉक्स? इट्स 22 lakhs तक। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर आप 6% भी आप विड्रॉल करते हो और उसके हिसाब से अगर आप पूरा मनी निकालते हैं, तो आप 15 साल के बाद में आप प्रिंसिपल निकालने चाहेंगे ना, तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 22 to 24 lakhs ही हाथ में आएंगे। ठीक है, वही आप इसको मतलब जैसे हमारा एक कैलकुलेशन होता है, अगर कोई 30s या 40s या 50s में अगर वो बोल रहे हैं कि हाँ मुझे सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान्स चाहिए जिसमें उनको हर महीने इनकम आए, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है कि जब हम इनको ये प्रोडक्ट देते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं कि आप 6% के हिसाब से साल का निकालिए, प्लस आपका पैसा इतना बचा के रखिए कि आपको रिटर्न्स लाइक 12 to 14% जब रिटर्न्स मिलेगा तभी तो आपका पोर्टफोलियो ग्रो करेगा। वो 1 crore 26 lakhs तक पहुंचा कैसे है? क्योंकि हमने 6% ही निकाला और बाकी का रेस्ट ऑफ अमाउंट उसमें रहने दिया, तो इसी वजह से वो ग्रो किया। तो आप देख सकते हैं कि 4.23% टाइम्स, लाइक 4.23 टाइम्स इसने ग्रो किया है। वही अगर आप 5 साल में देखने जाएंगे तो 1.83%, लाइक अप्रोक्सीमेटली आप है ना उसको अक्यूमुलेट कर सकते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट आप 5 साल बाद निकालेंगे तो 50 या 55 lakhs तक अक्यूमुलेट होगा। वही 10 साल बाद निकालेंगे तो 80 lakhs तक अक्यूमुलेट होगा। आप 15 साल बाद निकाल रहे तो 1 crore 26 lakhs तक अक्यूमुलेट हो रहा है। तो वेल्थ क्रिएट करना हो तो हम लोग अलग अलग जगह पे जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एफडी इज नॉट बैड, एफडीज भी करना चाहिए, लेकिन जब हमारे पास पे पैसे है और हमें हर जगह पे पैसे लगा के हर जगह से हमें प्रॉपर रिटर्न्स निकालना चाहिए ताकि हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रहे। लेट्स कम टू एन एनजे वेल्थ टैक्स। एनजे वेल्थ मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप कहीं पे भी कोई भी डीमेट अकाउंट आप ओपन करते हैं तो आपको प्रोडक्ट, मतलब बोलते हैं ना, अगर आप रियल लाइफ में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या इन्वेस्टमेंट करने के लिए टूल्स मिलते हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो आप एक बार समझ सकते हैं। ये चीज़ ईजी होगी आपको समझने के लिए। ठीक है, सो अगर मैं ऑल प्रोडक्ट की बात करूं तो हमें अगर वेल्थ क्रिएट करना हो तो हम वेल्थ क्रिएट करने के लिए डीमेट अकाउंट अगर आप कहीं पे भी ओपन करेंगे ना, तो वेल्थ क्रिएट करने के लिए आप इक्विटीज या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हो गया या फिर पीएमएस हो गया या डायरेक्ट इक्विटीज में भी जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल मिलेगी। वही अगर आपको सिर्फ वेल्थ प्रोटेक्शन करना है तो आप इंश्योरेंस या ऐसे एनजीएल लोन, लाइक लोन्स हमें मिलता है। लोन मीन्स लाइक हमारे पास म्यूचुअल फंड एक अच्छा खासा कॉर्पस हो गया है और हमें म्यूचुअल फंड निकालना नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसके बदले में हम म्यूचुअल फंड के बदले में हम लोन लेते हैं, उसे लैस बोला जाता है, जो हमें लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड पे मिलता है। ठीक है, और वही जगह पे अगर आपको
पूरी तरीके से सिर्फ साइट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो आप इस सारी चीज़ों में कर सकते हैं थर्ड सेक्शन में, दैट इज डेट म्यूचुअल फंड्स, टैक्सेबल एंड टैक्स फ्री बॉन्ड्स, एफडीज एंड एनसीडीज और नेशनल पेंशन स्कीम्स। ये आपको हर एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल मिलेगा। प्लस आपको जब भी लर्न करना हो, आप ऐसे स्टेज पे यू कैन स्टार्ट लर्निंग ऑल्सो, मतलब आपको बहुत ही ईजी होगा लर्न करने के लिए, क्योंकि बोलते हैं ना, अगर आप छोटे अमाउंट से भी स्टार्ट करते हैं, सपोज यू कंसिडर लाइक 500 और 1000 रुपीज, तो उससे आप इन्वेस्टमेंट करके शेयर मार्केट ट्रेडिंग कर सकते हैं, पेपर ट्रेडिंग कीजिए, ताकि आप उससे लर्न कीजिए और इसमें कैसे आप एक्सपर्टाइज लाइक और भी अच्छा लर्न करके कैसे आप अपने मनी को ग्रो कर सकते हैं, वो सीखने का आपको मौका मिलेगा। इससे रिलेटेड या मुझसे अगर आपको कनेक्ट होना है, तो आप मेरे पास में आप लाइक नीचे आप मेरा नंबर देख सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, इनफैक्ट आप मुझसे लिंक्डइन पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो इससे आपको बहुत ही लर्न करने का मौका मिलेगा। प्लस आप खुद भी अपने लाइफ में जो चीज़ें आपको अपने लाइक अपने हिसाब से कस्टमाइज पोर्टफोलियो बनाना है, तो वो सारी चीज़ें भी आपको मेरे तरफ से मिल पाएगी। ठीक है, ये एक ऐसा पेज है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। लाइक ये हमारे सिस्टम में एक अवेलेबल है, लाइक बोल सकते हैं कि अगर आपका कोई कॉर्पस है जिसमें आपको रिटायरमेंट कॉर्पस है, जिसमें आपको 7.5 करोड़ अक्यूमुलेट करना है, ठीक है, आपके पास एक ह्यूज अमाउंट टाइम है, लाइक एक ह्यूज टाइम है कि हाँ मेरे को 40 ईयर्स के बाद में या 30 ईयर्स के बाद में मुझे एक अमाउंट अक्यूमुलेट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि है ना, आपको 7.5 करोड़ आपको जमा करना है रिटायरमेंट के लिए। ठीक है, तो ये पेज आपको है ना आपका गोल्स कि कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है, कितने की अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, अगर प्रिंसिपल अमाउंट डालते तो आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको इस पे इजीली पता चल जाती है। आपके हर एक गोल्स को आप ऐसे ही मैपिंग कर सकते हैं। आपका करंट इन्वेस्टमेंट भी दिखता है और आपका जो आपका बोलते हैं ना ग्रोइंग कैसा हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपको पता चलती है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर नाउ। आपके पास में जो भी अगर आपको कोई भी इस टॉपिक से जितने भी जो भी चीज़ें मैंने आज आपको एक्सप्लेन की है उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी, आपको मैं उसके हिसाब से आपको गाइड कर सकती हूँ। ठीक है, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है तो। किसी को कुछ डाउट्स है तो वो मुझे ना बोल सकता है, ताकि मैं अगर उनको अगर कोई भी चीज़ का गाइडेंस की ज़रूरत है। एंड ओवर, ओके। मिस्टर संदीप, आपको अगर है ना मतलब हैंड ओवर करना है तो कर सकते। Yes, ma'am. Do any of you have any questions? The floor is open. You can directly ask to ma'am or put it in the chat box. Ma'am, I have a question, ma'am. Yes. Yeah. Ma'am, how can we invest in foreign companies? Is there any way to invest in foreign companies? As if we don't have time to research on, because more than 5,000 companies are listed in NSE and BSE, right? And so, Correct, as a bachelor, and at the same time being a student, we don't have that much time to do research on each and every equities to invest. So basically, we invest in. It is the best time for us to invest in index fund either or through mutual fund. But if we also want to invest in foreign companies, then what are the various methods so that we can invest in foreign companies or foreign indexes? अगर फॉरेन इंडेक्सेस की बात करें, आप कहीं मुझे ये तो नहीं पूछ रहे ना कि लाइक मैं अगर बिटकॉइन वगैरह ये सारे करेंसीज में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ तो वो नहीं ना, तो जो स्टॉक्स होते हैं हमारे reputed companies like Apple, Microsoft, Google and ये चीजों में। हाँ, सो लाइक अभी देखिए एज एन इनिशियल स्टेज, ठीक है,
आपका अगर आपके पास में हार्ड एंड मनी जो भी आपके पास आता है लर्न करने के लिए आप जो भी प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करते हैं, जैसे आप है ना कोई भी कंपनी का डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं, लाइक एंजल ब्रोकिंग हो गया, शेर खान हो गया, किसी पे भी, ठीक है। आप अगर उधर बोलते हैं कि मुझे सिर्फ कमोडिटीज में या फॉरेन करेंसीज के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करना है, सो उसके अंदर अवेलेबल होता है, लाइक कैसा होता है, इंडियन मार्केट होता है, कमोडिटी मार्केट होता है, वैसे करेंसी मार्केट होता है जिसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये सारी चीजें है ना, कैसे अगर आप बोलते हो कि कोई एक्सपर्टाइज्ड है, लाइक शेयर मार्केट ट्रेडिंग में जो एक्सपर्टाइज्ड लोग हैं जो आपका पैसा लेते हैं और उसके हिसाब से वो अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं कि हाँ अभी मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या अभी उसमें करना चाहिए, अभी ट्रेंड इसका अच्छा है तो ये मुझे अच्छा रिटर्न्स निकाल के देगा। तो ऑन एन इनिशियल स्टेज आपको मैं सिर्फ एक ही चीज सजेस्ट करूंगी, आप कर सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट विद अ स्मॉल अमाउंट, आपका जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये मेरा पोर्टफोलियो अच्छा मैनेज कर सकते हैं, तो आप उनके हाथ में आप अपना पोर्टफोलियो दे सकते हैं। क्योंकि कैसा होता है, आप अभी तो आप ऑन एन इनिशियल स्टेज पे तो आपको इतना लर्निंग नहीं होगा, इतना पता नहीं होगा कि कौन से फंड में मुझे जाना चाहिए या कौन सा मुझे ग्रो करके देगा। लॉन्ग टाइम के हिसाब से आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कीजिए। ब्लू चिप स्टॉक्स जैसे हम बोलते हैं इंडियन मार्केट में, वैसे ही हमारे अच्छे स्टॉक जैसे आपने एप्पल बोला, माइक्रोसॉफ्ट बोला है, वो सारे में आप इन्वेस्टमेंट करके थोड़ा थोड़ा करके आप उसको ग्रो कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा है ना, और अगर वो प्राइस अगर वो 10 रुपीज़ या 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ भी ग्रो कर गया ना, तो भी आप बहुत अच्छा अमाउंट अक्यूमुलेट कर सकते हो इजीली। ठीक है, और कुछ कोई क्वेश्चन? थैंक यू। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। और किसी को कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि देखिए हम लर्न करने के हिसाब से तो यहाँ पे बैठे ही है, लेकिन आपको आपके फ्यूचर के हिसाब से भी अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको उस हिसाब से आपके लाइफ के हिसाब से मैं आपको गाइड करके दूंगी। इट जस्ट लाइक अ कस्टमाइज्ड फाइनेंशियल प्लानिंग और अ कस्टमाइज्ड गाइडेंस। Guys, please free to ask any question. आपको कुछ भी अगर नहीं समझा होगा यू कैन आस्क मी, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इनफैक्ट अगर आपको चाहिए तो जो हमने वेबिनार लिया उसका भी इलास्ट्रेशन मैं आपको सेंड कर सकती हूँ। लाइक आप मतलब आप मुझे है ना आई वांट लिख के भी आप भेज देते हैं, और मेरा जो वेबिनार था उसके अंदर मेरा नंबर भी है ना अपडेटेड है। लिंक्डइन पे भी आप मुझे सर्च कर सकते हैं, तो उसमें भी आप मुझे कनेक्ट होकर आप मुझसे सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट काफ़ी लोग मुझसे कनेक्ट भी होते हैं और काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं इन्वेस्टमेंट को लेके। तो अगर आपको भी कुछ लर्न करना है या क्वेरीज पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं इजीली। आई थिंक किसी को क्वेश्चंस नहीं है फिलहाल। ओके फाइन, नो आपका लिंक्डइन का नाम क्या है? वैशाली गुप्ता। मैम आप चाहिए तो चैट बॉक्स में भी एक बार लिख दीजिए। हाँ, मैं चैट बॉक्स में लिख देती हूँ। Okay. Okay, so I think this is it for today's webinar. Okay. So thank you, ma'am, for enlightening us about the different types of investing options, then why investment is important. It was a really wonderful webinar. So Thank you. The important information for all the attendees, please do fill your feedback form. The link will be sent to you on WhatsApp. You will receive your e-certificate along with it. And also share your experience on LinkedIn, tag Financial Yari and as well as Vaishali ma'am. And so thank you everyone for joining in once again. Thank you ma'am. Thank you so much. Thank you so much. जो भी आपने लर्न किया उसके लिए भी, और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैम। थैंक यू। So have a good evening and goodbye.